Welcome to Adishri Publication. In our today's EVS class, we are going to see your chapter number 3. And the name of your chapter number 3 is Amazing Birds. Okay. In this chapter, my dear student, we are going to see feathers. Okay. Feathers of the bird. How do birds fly? Okay. Then flying differently, flightless birds, aquatic birds. Means, first of all, we are going to discuss about types of birds. Okay. They all comes under the category of types of bird. Then we are going to see the feet and claws of birds, birds of prey, beaks and food habits of bird. Okay, and apart from that, we are also going to see some curricular goals. Okay, what are those curricular goals? We are going to, first of all, my dear student, identify common birds and their characteristics. Okay, so first of all, we need to identify some common birds as well as their characteristics. Then understand the role of birds in nature and ecosystem. What role our birds used to play in the conservation of our ecosystem. We are going to understand about their role. Then comes foster curiosity and respect for wildlife and bird conservation. Okay, so all this topic we are going to discuss in this chapter. So come with me and let's see the chapter. Birds are beautiful animals. They can fly. Their body is divided into 3 parts: head, trunk and tail. Birds have legs but no hands. They have wings in place of their hands. So students देखिए जो birds हैं, जो हमारे birds होते हैं ना, ये बहुत ही beautiful animals होते हैं. ठीक है, ये उड़ सकते हैं और इनकी जो body होती है ना, वो 3 parts में divide की जाती है. जैसे उनका head होता है, trunk होता है और tail होता है. ठीक है, birds के पास leg तो होती हैं but उनके पास कोई हाथ नहीं होता है. ठीक है, उनके पास हाथ की जगह पे wings होते हैं. ठीक है, चलिए फिर देखिए, there are more than 9,000 species of birds. They are spread over the entire earth. They are of different sizes and colors. Their whole body is covered with feathers. Feathers, beaks and claws are their special features. ठीक है, और हमारे पूरे वर्ल्ड में 9,000 से ज्यादा स्पीशीज है हमारे बर्ड्स के. ठीक है, और वो पूरे के पूरे प्लैनेट अर्थ पे हर जगह फैले हुए हैं. ठीक है, इनकी जो बॉडी का शेप होता है, साइज होता है, वो बहुत ही अलग अलग तरीके का होता है. ठीक है, इनकी पूरी की पूरी बॉडी ना फेदर से कवर की होती है. ठीक है, तो फेदर्स, बीक और क्लॉज इनके स्पेशल फीचर्स होते हैं. सो हियर यू कैन सी द हेड पार्ट ऑफ द बर्ड, देन ट्रंक पार्ट एंड देन द टेल पार्ट. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फेदर्स. तो फेदर्स क्या होते हैं देख लीजिए. Birds are the only animals which have feathers. A bird's body is covered with feathers. Feathers are of different colors in different birds. There are 3 kinds of feathers. ठीक है, जो birds होते हैं वो इकलौते ऐसे एनिमल है जिनके पास feathers होते हैं. ठीक है, इनकी पूरी की पूरी बॉडी पंखों से यानी feather से ढकी हुई है. ठीक है, इनके जो feathers होते हैं वो बहुत ही अलग अलग तरीके के होते हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स फेदर्स को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ओके, सो फर्स्ट टाइप ऑफ फेदर इज डाउन फेदर. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फेदर, दैट इज डाउन फेदर. ओके, These feathers cover the body and keep it warm. They are small and fluffy. ठीक है, जो डाउन फेदर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये पूरी इनकी बॉडी को कवर करके रखते हैं. ठीक है, और ये इनकी बॉडी को कवर करने के साथ साथ गर्म भी रखते हैं. ठीक है, ये बहुत ही छोटे और फ्लफी होते हैं. ठीक है, तो दूसरे तरीके का फेदर है जो इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, बॉडी फेदर. दिस फेदर्स कवर द बॉडी एंड गिव अ शेप टू इट. अब बॉडी फेदर है तो इसका क्या मतलब होता है, बॉडी फेदर का मतलब होता है पूरे के पूरे बॉडी को ये कवर करके रखते हैं और शेप देते हैं बॉडी को. ठीक है, ओके, देन द फ्लाइट फेदर्स. तो फ्लाइट फेदर्स क्या होता है देख लीजिए. फ्लाइट फेदर्स आर लॉन्ग एंड फ्लैट फेदर्स इन द विंग एंड टेल. जो फ्लाइट फेदर्स होते हैं ये लॉन्ग होते हैं और लंबे होते हैं, मतलब लंबे हैं और फ्लैट होते हैं. ठीक है, ये आपके विंग्स मतलब बर्ड्स के विंग्स और टेल पे होते हैं. दे हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई. ठीक है, तो फ्लाइट फेदर्स ही क्या करते हैं, बर्ड्स को हेल्प करते हैं उड़ने में. ओके, सो माय डियर, सो यू कैन सी देयर आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेदर्स. ओके, नाउ हाउ डू बर्ड्स फ्लाई. बर्ड्स कैसे उड़ते हैं आप देख लीजिए. बर्ड्स किस तरीके से उड़ते हैं. जो बर्ड्स आपके उड़ते हैं वो विंग्स की हेल्प से उड़ते हैं. ठीक है, तो विंग्स में मूवमेंट होती है इसलिए वो उड़ते हैं. ठीक है, जो बर्ड्स होती है वो क्या करती है, दोनों डायरेक्शन में यानी अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में बर्ड्स अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं उड़ने के लिए. ठीक है, इसीलिए इनके जो मूवमेंट है इस विंग को, मतलब इनके जो विंग्स के मूवमेंट होते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड, इसको कहा जाता है अप स्ट्रोक या डाउन स्ट्रोक. ठीक है, अप स्ट्रोक या डाउन स्ट्रोक कहा जाता है. ठीक है, तो देखिए जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में इनके विंग्स मूव करते हैं तो अप स्ट्रोक कहते हैं, और जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं तो इनको हम डाउन स्ट्रोक कहते हैं. ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ विंग्स ऑफ अ फ्लाइंग बर्ड. ठीक है, तो फ्लाइंग बर्ड के मूवमेंट्स कौन कौन से हैं, तो ये रहे बच्चों. ठीक है, ये रहा इसका डायग्राम. ठीक है, अब आप ये देखिए जो बहुत से बर्ड्स होती है ना वो काफी ऊंचाई पे उड़ती हैं. ठीक है, वो आप देखते हैं ना जैसे ईगल है वो काफी ऊंचाई पे उड़ता है. ठीक है, तो इन लोगों को अपने विंग्स को ना फ्लैप करने की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, तो अगर ये फ्लैप नहीं करते तो उड़ते कैसे, तो इनका जो टेल होता है मतलब इन बर्ड्स के जो टेल होते हैं
ठीक है। वो क्या करते हैं, बोट के तरह पे काम, मीन्स वो बोट शेप में होते हैं, ठीक है। वही हेल्प करते हैं इन बर्ड्स को बिना इनके फेदर्स को मूव किए ऊपर हवा में डायरेक्शन चेंज करने में, ठीक है। सो हियर सम ब्रेन बेस्ड क्वेश्चन व्हिच यू आर गोइंग टू गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। पहला क्या है, व्हाट इज द मोस्ट स्पेशल फीचर ऑफ अ बर्ड, बर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है, ये आप बताओगे। दूसरा है व्हाट हेल्प्स द बर्ड्स इन फ्लाइंग, ठीक है, बर्ड्स को उड़ने में कौन हेल्प करता है, ठीक है। चलिए ना, फ्लाइंग डिफरेंटली, देखिए बर्ड्स इतने सारे टाइप के हैं, तो इसका मतलब क्या है, सबके उड़ने का तरीका भी अलग अलग होगा। तो कुछ बर्ड्स हमारे ईगल, वल्चर या काइट, यही वो बर्ड्स होते हैं जो बहुत ऊपर ऊंचाई पे उड़ते हैं, ठीक है, जो बहुत ऊंचाई पे ये लोग उड़ते हैं, ठीक है। ये देखिए पिक्चर ऑफ काइट, देन ईगल, देन वल्चर, ओके। नाउ ऑन द अनदर हैंड साइड माय डियर स्टूडेंट, सम बर्ड्स, ठीक है, जैसे कुछ बर्ड्स, आपका स्पैरो है, बुलबुल है, ये लो हाइट पे उड़ते हैं, ठीक है। वहीं पे कुछ बर्ड्स हैं जैसे क्रो और पिजन है, ये क्या करते हैं, ये काफी लंबी दूरी पे उड़ते हैं, ठीक है। जैसे आपका काइट, ईगल, वल्चर, ये काफी ऊंचाई में आसमान में हाइट में उड़ते हैं, तो बुलबुल और स्पैरो काफी लो पे उड़ते हैं। तो क्रो और पिजन ऐसे बर्ड्स होते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी द स्पैरो बर्ड, हैन, क्रो एंड पिजन, ठीक है। वहीं पे बच्चों हमारे कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे हैन है, ठीक है। हैन बहुत कम डिस्टेंस पे उड़ सकती हैं, यानी एक जगह से यहां से वहां तक ही ये लोग उड़ सकती हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये लोग चलते हैं अपने पैरों पे, कौन चलता है, हैन चलते हैं, ठीक है। अब नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए अभी तक जितने हम लोगों ने बर्ड्स की बात की है ना, दिस ऑल बर्ड्स आर फेदर्स। वहीं पे हमारे प्लैनेट अर्थ पे कुछ ऐसे भी बर्ड्स हैं जिनके पास पंख नहीं होते हैं, उनको हम फेदरलेस बर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से, जैसे आपके कुछ बर्ड्स है, कीवी है, ऑस्ट्रिच है, पेंगुइन है, ठीक है। तो कीवी, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन ये आपके उड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इनकी बॉडी बहुत ज्यादा हैवी होती है। तो अभी तक के जितने बर्ड्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, इनकी बॉडी बहुत हल्की होती है, इनके बोन्स बहुत ज्यादा नैरो शेप्ड होता है, ठीक है। लेकिन कुछ बर्ड्स आपके होते हैं जैसे कीवी और ऑस्ट्रिच हैं, कीवी, ऑस्ट्रिच या पेंगुइन, ये उड़ नहीं सकते हैं। एंड व्हाई दे कांट फ्लाई, बिकॉज देयर बॉडी इज वेरी हैवी, ओके। तो ये उड़ नहीं सकते, इसीलिए इनको फ्लाइटलेस बर्ड्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक जगह से दूसरी जगह अपने लेग की मूवमेंट की वजह से ये उड़ते हैं, ठीक है। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ कीवी, पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच, ओके। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अपार्ट फ्रॉम देम सम आवर बर्ड्स यूज्ड टू लिव इन वाटर, सो वी कॉल देम एक्वेटिक बर्ड्स। तो ये कौन होते हैं देख लीजिए, तो एक्वेटिक बर्ड्स हमारी पानी में रहती हैं, ठीक है। पानी में रहती है मतलब ये ज्यादातर टाइम पानी में ही बिताती हैं, या तो ये पानी पे तैरती रहती हैं या फिर मछलियां पकड़ती हैं, फिर स्विम करती रहती हैं उसमें, ठीक है। देखिए ये जो बर्ड्स होती है ना, जो पानी में रहती है, इनके पास ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। ऑयल ग्लैंड्स का मतलब होता है इनकी बॉडी पे एक तरीके से ऑयल टाइप का एक लेयर होता है जो इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है गीला होने से, ठीक है। इसीलिए, और देखिए ये जो बर्ड्स होती है ना, इनकी वेब्ड टोज होती है, मतलब इनके जो टोज होते हैं ना वो इस शेप में होते हैं, ठीक है, इस शेप में होते हैं। और यही जो इस शेप में वेब टोज होती है, इस शेप में, ये इनको हेल्प करते हैं पानी में स्विम करने में। तो कौन कौन से हमारे एक्वेटिक बर्ड्स होते हैं, डक, स्वान्स, क्रेन्स, गुल और पेलिकन्स, ये सारे हमारे सबसे कॉमन क्या है, एक्वेटिक बर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे ये डक है, ये स्वान है, ये क्रेन है और आपका ये पेलिकन है, ठीक है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब बहुत बातें हो गई, बर्ड्स उड़ सकते हैं, नहीं उड़ सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फिट और क्लॉज के बारे में, मींस फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स, ठीक है। तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स है, तो इसका मतलब क्या है, उनके डिफरेंट डिफरेंट फीट और क्लॉज भी होंगे, ठीक है। यही इनकी जो क्लॉज होती हैं, ये बर्ड्स को हेल्प करती है चलने में, चढ़ने में या फिर स्विमिंग करने में, ठीक है। देखिए इन्हीं की वजह से वो क्या करते हैं, कैच करते हैं, मतलब वो अपने खाने को कैच करते हैं, पकड़े रहते हैं या फिर अपना खाना वो खाते हैं, ठीक है। और क्लॉज, जो इनके क्लॉज होते हैं, वो बर्ड्स को हेल्प करते हैं एनिमल्स से, सॉरी उनकी एनिमीज से, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, लेट अस नो अबाउट सम कॉमन टाइप्स ऑफ फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम कॉमन टाइप ऑफ फीट एंड क्लॉज, ठीक है, ऑफ बर्ड्स। तो सबसे पहला बच्चों इनके जो टाइप एंड फिट ऑफ क्लॉज का वो है स्क्रैचिंग बर्ड, ठीक है। तो स्क्रैचिंग बर्ड का मतलब खुरचने वाले, ठीक है, स्क्रैचिंग बर्ड्स। तो देखिए बहुत से स्क्रैचिंग बर्ड्स हैं, जैसे हमारा हैन और क्वेल है, ठीक है। तो हैन और क्वेल के ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीट होती है, इनके जो पैर होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। और इनके पास सामने के जो इनके 3 फुट होते हैं ना, ये क्या होते हैं, इनके सामने वाले 3 फुट लंबे होते हैं, और एक जो होता है शॉर्ट टो, देखिए ये जो शॉर्ट टो है ये इस तरीके से पीछे होता है, ये आगे के 3 बड़े होते हैं और एक पीछे होता है, ठीक है।
इसमें नाखून बहुत ज्यादा नुकीले इनके नाखून होते हैं, ठीक है। इसी से ये क्या करते हैं, स्क्रैच करते हैं। स्क्रैच करने के साथ जो भी खाना, जो भी सीड या कोई भी इंसेक्ट जमीन के अंदर है, ये उसको निकाल लेते हैं खुरच के, ठीक है, और ये खाते हैं। इसी स्क्रैचिंग फीट की वजह से ये चल सकते हैं और साथ ही साथ दौड़ सकते हैं ग्राउंड पे, ठीक है। फिर बारी आती है आपके पर्चिंग बर्ड्स की। तो पर्चिंग बर्ड्स कौन होते हैं, देख लीजिए। पर्चिंग बर्ड्स जैसे आपका क्रो और स्पैरो है, ठीक है, इनके पास 4 पैर होते हैं, सॉरी, इनके 4 उंगलियां होती हैं, 3 आगे और एक पीछे होती है, ठीक है, इन्हीं लोगों की तरह, स्क्रैचिंग बर्ड्स की तरह, ठीक है। ये हेल्प करती है इनको किसी भी पेड़ के ब्रांच को स्ट्रांगली पकड़े रहने में, ठीक है। अब देखते हो ना, जो क्रो होते हैं, स्पैरो होते हैं, ये बैठे रहते हैं, जब बैठते हैं ये लोग तो कितने मजबूती से पकड़ के बैठते हैं। तो यही इनकी जो फीट होती है ना, इनके जो टोज होते हैं, इनकी हेल्प करते हैं ब्रांचेस को पकड़े रहने में, ठीक है। साथ ही साथ ये जब पकड़े रहते हैं, इवन आपको पता है ये अगर सो भी जाते हैं ना, ये गिरते नहीं है, ये इनके फिट और टोस की वजह से, ठीक है। और ये लोग जमीन पे चल सकते हैं इसी की हेल्प से, ठीक है। तो देख सकते हैं पर्चिंग बर्ड एंड इट्स टोस, ओके। नाउ बर्ड्स ऑफ प्रेज, अब ये कौन होते हैं देख लीजिए। बर्ड्स ऑफ प्रे जैसे आपके कुछ बर्ड्स हैं, आपके ईगल, वल्चर, हॉक या आउल, इनकी जो फीट होती है ना सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, सबसे ज्यादा इनकी फीट स्ट्रांग होती है। और इनके जो क्लॉज होते हैं ना, इनके क्लॉज को टैलॉन्स कहा जाता है, ठीक है। इनके क्लॉज जो टैलॉन्स कहलाते हैं, इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि अपने शिकार को बहुत मजबूती से पकड़े रहते हैं। शिकार इनकी पकड़ से निकल के भाग नहीं सकता है, ठीक है। और ये अपने शिकार को पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। कैसे लेके जाते हैं, उड़ के लेके जाते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी द बर्ड ऑफ प्रे एंड इट्स टोज, ओके। नाउ स्विमिंग बर्ड्स, अब हम लोग देखते हैं वो बर्ड्स जो स्विम कर सकते हैं। तो कौन कौन से आते हैं स्विमिंग बर्ड्स, जैसे डक और स्वान है, जो इनकी वेब्ड फीट होती है, ठीक है। ये इनको हेल्प करती है पानी में तैरने में, ठीक है। और साथ ही साथ ये तैरने में कैसे, जैसे बोट होता है ना, पानी को पीछे कर ढकेलते हो तब बोट आगे चलती है, वैसे ही अपने क्लॉज, अपने टोज का यूज करते हैं पानी को पीछे ढकेलने में और स्विमिंग करने में, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये इनके इस तरीके के टोज होते हैं। देन क्लाइंबिंग बर्ड्स कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। क्लाइंबिंग बर्ड्स लाइक पैरट्स और वुड पिकर्स, ठीक है। जो क्लाइंबिंग बर्ड्स होते हैं, जैसे पैरट है, वुड पिकर है, इनके पास इनके 4 टोज होते हैं, 2 अपवर्ड डायरेक्शन में और 2 आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये इनको हेल्प करते हैं पेड़ों पर चढ़ने में, ठीक है। सो ये देखिए, इस टाइप का इनका क्या होता है, क्लाइंबिंग बर्ड एंड इट्स टोज, ठीक है। नाउ ब्रेन ब्लिट्स, या आप बताओगे मुझे इसका आंसर क्या है। कैन ऑल बर्ड्स फ्लाई, नेम एनी 3 व्हिच कैन नॉट फ्लाई, ठीक है। देन सेकंड, कैन ऑल बर्ड्स स्विम, नेम एनी 3 व्हिच कैन स्विम, ठीक है। इसके अलावा ट्रूथ बैंकिंग देख लेते हैं। फ्लैमिंगो क्या है, देखिए, फ्लैमिंगो एक ऐसा बर्ड है जो दोनों पैरों पे खड़ा रहता है, स्टैंड ऑन बोथ व्हाइल दे फीड, ठीक है। फ्लैमिंगो जब खाना खाते हैं तो ये दोनों पैरों पे खड़े होकर खाना खाते हैं, ठीक है, चाहे वो आराम कर रहे हो चाहे वो खड़े हो, ठीक है। ऑन वन लेग बिकॉज दिस हेल्प देम कीप देयर बैलेंस बेटर। देखिए, जो फ्लैमिंगो है ना, खाना खाते टाइम अपने दोनों पैरों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर वो सो रहे हैं या फिर अगर वो खड़े हैं तो वो दोनों पैर का इस्तेमाल नहीं करते, वो सिर्फ एक पैर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा बच्चों वेडिंग बर्ड्स होती हैं। अब ये वेडिंग बर्ड्स हमारी कौन कौन सी है देख लीजिए। वेडिंग बर्ड्स जैसे आपका क्रेन या पैडी बर्ड्स होती है, इनके ना पैर बहुत लंबे होते हैं। आप लोगों ने देखा ना क्रेन के कितने लंबे लंबे पैर होते हैं, तो इनके पैर इतने लंबे होते हैं और इनकी जो टोज होती है ना बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड होती है, बहुत ज्यादा फैली होती है, ठीक है। और यही हेल्प करता है, यही इनके टोज हेल्प करते हैं कि मड में खड़े रह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नाउ माय डियर्स, वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, बिग्स एंड फूड हैबिट्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है। तो अब हम लोग बर्ड की बिग्स के बारे में देखेंगे, उनके खाने के हैबिट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो बर्ड्स यूजुअली आपके ग्रेन, सीड्स और क्या खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। कुछ आपके बर्ड्स दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं, जैसे ईगल है, वल्चर है, आउल है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ये अपने बिग्स का इस्तेमाल करते हैं खाना खाने के लिए और खाने को पकड़े रहने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों एक बात याद रखिएगा, बर्ड्स के पास कोई हाथ नहीं, उसकी जगह उनके विंग्स होते हैं और इनके पास कोई दांत भी नहीं होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये खाना खाते हैं, टीयर करते हैं। ये खाने को कैसे खाते हैं, उनको फाड़ते हैं पहले या फिर ऐसे ही खा लेते हैं, ठीक है। तो बर्ड्स के पास अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की बिग्स होती हैं, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि बर्ड की बॉडी का शेप क्या है, साइज क्या है, उसी पे इनकी बिग का साइज और शेप भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं बच्चों जो अपने बिग का इस्तेमाल करते हैं लड़ने के लिए, ठीक है, अपने दुश्मन से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर अपने लिए शिकार करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, इनके फूड हैबिट्स के बेसिस पर इनके बिग्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला जो इनका बिग होता है बच्चों, वो होता है शॉर्ट एंड ब्रॉड बिग, ठीक है। तो कुछ बर्ड्स की जो बिग्स होती है वो छोटी होती है लेकिन चौड़ी होती है, ठीक है।
तो ये क्या करते हैं, जिन बर्ड्स की जो बिग्स होती है वो शॉर्ट और आपकी ब्रॉड होती है ना, वो स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है अंदर से, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ये जब बर्ड्स मूव करते हैं, मतलब ये बर्ड्स जब एयर में उड़ रहे होते हैं, तो उस टाइम ये अपने मुंह को खुला रखते हैं, ठीक है। ये अपने मुंह को खुला हुआ रख के उड़ते हैं, ठीक है। तो क्यों खुला हुआ उड़ के रखते हैं कि उड़ते उड़ते कोई इंसेक्ट अगर इनके माउथ के पास आता है तो उनकी जबान जो स्टिकी होती है उस पर चिपक जाता है, उसको खा लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए शॉर्ट एंड ब्रॉड बिक ऑफ अ स्वेलो, ठीक है। चलिए, इसके अलावा इनके बिक का क्या काम है, मतलब कौन से इनके टाइप के बिक होते हैं, वो होता है शॉर्ट हार्ड हॉर्नी बिक, ठीक है। तो बहुत से बर्ड्स है, जैसे आपका स्पैरो, पिजन और पिकॉक है। तो स्पैरो, पिजन, पिकॉक, इनका मेनली खाना क्या होता है, ये मेनली आपके नट्स, ग्रेन और सीड्स को खाते हैं, ठीक है। इनके जो बिक होती है वो छोटी होती है, हार्ड होती है, पॉइंटेड बिक होती है, ठीक है। और ये पॉइंटेड बिक की वजह से अपने खानों को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके खाते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ शॉर्ट हार्ड एंड हॉर्नी बिक्स, ओके। सो पिजन, स्पैरो एंड पिकॉक। नाउ अब कौन सा कर्व्ड बिक वाले कौन से हमारे बर्ड्स होते हैं, कर्व बिक, इनकी बिक्स कर्व्ड होती हैं, जैसे पैरॉट, पैरॉट है, ठीक है, पैरट है, पैरट की जो बिक होती है वो क्या होती है, कर्व के शेप में होती है, ठीक है। ये कर्व के शेप में इनको हेल्प करती है नट्स को और हार्ड फूड्स को तोड़ने में और उनको खाने में, ठीक है। फिर बारी आती है आपकी ब्रॉड और फ्लैट बिक वाले बर्ड्स की। तो कौन कौन से होते हैं, तो देख लीजिए, डक इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। डक जो डक होती है, इनकी जो बिक्स होती है बहुत ही चौड़ी और बहुत ही फ्लैट होती है, ठीक है, फ्लैट होती है। तो ये क्या कर, ये देखिए, it has tiny holes called shocks at the side and fine holes called strainers for along the edges। देखिए, इनकी जो बिक होती है ना, उसमें छोटे छोटे से होल भी होते हैं, उस होल को हम शॉवल कहते हैं, और जो बड़े होल्स होते हैं उसको हम स्ट्रेनर्स कहते हैं, ठीक है। देखिए, ऐसी बिक इनके पास क्यों होती है, ऐसी बिक डक के पास इसलिए होती है क्योंकि ये लोग पानी में रहते हैं, ठीक है। तो पानी में ये लोग रहते हैं तो इसका मतलब कीचड़ में भी रहेंगे, ठीक है। तो उस कीचड़ में से, उस मड में से ये इंसेक्ट्स को, वॉर्म्स को या फिर वाटर प्लांट जो इनका मेन खाना है, ये उसको इजीली वो खा सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो ब्रॉड एंड फ्लैट बिक ऑफ डक। इसके अलावा बच्चों देखिए, हमारे जो और दूसरे बर्ड्स हैं जिनके स्ट्रॉन्ग, शार्प और हुक्ड शेप्ड बिक्स होती हैं, ठीक है। इनकी जो बिक्स होती हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, शार्प होती हैं, ठीक है। तो प्रेइंग बर्ड्स, ये बेसिकली शिकार करने वाले बर्ड्स होती हैं, जैसे आपका ईगल, वल्चर, हॉक, काइट या आउल है। इनके बिक्स क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, शार्प होते हैं और हुक के शेप में होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये अपने शिकार के फ्लैश को फाड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके खाते हैं, ठीक है। So you can see this all are the example of the birds of strong, sharp and hook shaped beaks. Okay. So कौन कौन है आपका ईगल, वल्चर, काइट, आउल और हॉक। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है बर्ड्स की, उनकी जो बिक होती है वो होती है ब्रॉड, लॉन्ग और पॉइंटेड बिक, ठीक है। तो ब्रॉड, लॉन्ग और पॉइंटेड बिक होती है। तो कौन सा बर्ड्स की जो बिक है वो ब्रॉड है, लंबी है और पॉइंटेड है, वो होते हैं आपके स्टॉर्क और किंगफिशर्स, ठीक है। इनकी जो चोंच होते हैं बहुत ज्यादा लंबी और पॉइंटेड होती है, बिल्कुल, ठीक है। ये क्या करते हैं, इसी पॉइंटेड बिक से मछली को पकड़ के खाते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, ब्रॉड, लॉन्ग एंड पॉइंटेड बिक ऑफ किंगफिशर। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, फिर बारी आती है हमारे स्ट्रॉन्ग एंड हैवी बिक। बहुत से बर्ड ऐसे होते हैं जिनकी जो बिक होती है बहुत ज्यादा हैवी होती है और स्ट्रॉन्ग भी होती है। तो वो कौन से बर्ड है, वो हमारे वुड पैकर्स होते हैं, ठीक है। तो वुड पैकर्स जो हमारे होते हैं, इनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हैवी बिक्स होते हैं, ठीक है। तो इनके बिक्स को देखिए, स्ट्रॉन्ग और हैवी बिक वाले बर्ड्स के बिक को एक और नाम से बुलाया जाता है, वो है चेसल शेप्ड बिक्स, ठीक है। ये बिक्स, इस टाइप की बिक्स इनकी हेल्प करती है खाने को पिक करने में, और कहीं पे भी मीन्स बच्चों, इसका मतलब ये है कि पेड़ के किसी भी पार्ट में ये होल बना सकते हैं, इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग बिक्स होती हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एंड हैवी बिक ऑफ वुड पैकर, ठीक है। चलिए, इसके अलावा बच्चों ये देखिए, लॉन्ग, थिन एंड पॉइंटेड बिक, ठीक है। तो लॉन्ग, थिन या पॉइंटेड बिक्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से बर्ड्स के होते हैं, देखिए, ये सन बर्ड है, ठीक है। सन बर्ड एक ऐसा बर्ड है जिसकी लॉन्ग थिन और पॉइंटेड बिक होती है, ठीक है। इससे, इसकी वजह से इसकी जो चोंच होती है इतनी लंबी होती है, इतनी पॉइंटेड होती है कि किसी भी फ्रूट के जूस को ये आसानी से पी सकती है, ओके। तो ये देखिए, लॉन्ग, थिन एंड पॉइंटेड बिक ऑफ सन बर्ड, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, लॉन्ग एंड स्लेंडर बिक, ठीक है। बहुत से ऐसे बर्ड्स होती हैं जिनकी जो बिक्स होती है बहुत लंबी और स्लेंडर शेप में होती है, ठीक है। जैसे होपोई, ठीक है। होपोई नाम की एक बर्ड है जिसका जो बिक होता है ना बहुत ही लंबा और स्लेंडर होता है, ठीक है। ये क्या काम करता है, इसकी जो स्लेंडर बिक होती है ना, ये इन बर्ड्स को हेल्प करता है कि जमीन में होल बना के किसी भी इंसेक्ट को ये निकाल के खा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, लॉन्ग एंड स्लेंडर बिक ऑफ होपोई, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर
Okay, chapter number 3. Okay, so come with me and let's see the wrap it up of this chapter. क्या क्या चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी है, तो देखिए हमारे पूरे वर्ल्ड में 9000 से ज्यादा स्पीशीज हैं बर्ड्स की, ठीक है। साथ ही साथ बर्ड्स क्या है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल एनिमल्स हैं, ठीक है। देखिए जो बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं ना, ये कई कलर के आते हैं, कई तरीके के शेप में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब बर्ड्स अपनी विंग्स को फ्लैप करते हैं तो वो दो डायरेक्शन में फ्लैप करते हैं, एक अपर डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में उड़ने के लिए, ठीक है। इसके अलावा बच्चों देखिए क्या है, जो बर्ड्स की टेल होती है, ठीक है, जो बर्ड्स की आपकी टेल होती है नाव की तरह काम करती है और ये उनको उड़ने में हेल्प करती है। साथ ही साथ बच्चों जो बर्ड्स की बिक होती है वो उनको हेल्प करती है, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, नॉट बिग्स, क्लॉज। जो बर्ड्स की क्लॉज होती है वो उनको हेल्प करती है चलने में, मतलब चलने में, स्विमिंग करने में, एक्सेट्रा, ठीक है। फिर बच्चों ये देखिए जो चेसल शेप्ड बिक होती है बर्ड्स की, वो हेल्प करती है उनको खाने को पिक करने में और ट्रीज के ट्रंक में होल्ड करने में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर, ओके। जस्ट गो थ्रू दिस चैप्टर एंड कंप्लीट द सेल्फ इवैल्यूएशन और क्वेश्चन आंसर सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर. Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.